Today we are going to solve some numerical problems on vibration absorbers. And from the topic of vibration absorbers, it is the part of numericals that is most important. And to our relief, this is the only singular equation that you need to remember in order to tackle any type of numerical that comes from vibration absorbers. Only one single formula, this one. The only thing is you must understand what this equation signifies. What does this equation actually give you? Let us write this equation down and then discuss the details of this equation. It says omega upon omega 2 whole square is equal to 1 plus mu by 2 minus plus under root of mu plus mu square by 4. It's important to note that there are two signatures here. In one case, the minus sign between these two terms will be used, and in another case, the plus sign in between these two will be used. Now let us see what does this say. Omega is the forcing frequency with which your machine is operating, or the operating frequency or the working frequency. Omega 2 is the stand-alone natural frequency of your absorber spring mass system. So you should always remember that your primary system is K1 M1 and your absorber system or the secondary system is K2 M2. So this omega 2 which comes in the denominator here is nothing but under root of K2 by M2. And the condition of vibration absorption is that your omega should be equal to omega 2. That is the condition of vibration absorption. Okay. Now, what is mu? We have already seen that there are two masses now. The primary system is K1 M1. To absorb the vibrations of the primary system, you attach a secondary system K2 M2. This mu is called as the mass ratio and it is M2 upon M1. That means the ratio of the mass of absorber to that of the primary system. This is mu. Now on the right hand side of this equation, as you can see, there is no other parameter but only mu. So the ratio of omega by omega 2 whole square is solely a function of the mass ratio. Now, this equation is presented, it has to be remembered by you. We have derived it in the previous class, and now let us understand what does this signify. Once you have chosen a value of M2 for a given system of K1 M1, K1 M1 is the system which will be given to you. And depending on certain conditions, you will design an absorber and put an auxiliary system in place, K2 M2, where K2 and M2 have to be decided by you. But once it has been decided, then you can say that the value of mu is now finalized. अब मेरा mu जो है ये set हो गया है क्योंकि मैंने M2 को decide कर लिया.
और M1 तो मेन मशीन का मास है, वो मेरे हाथ में है ही नहीं डिसाइड करना, वो तो जो है वो है बस. So once you decide on a value of M2, then this ratio M2 by M1 gets frozen. Now it has been okayed and now you have a value of mu in your hands. तो अब अगर आपने mu की वैल्यू इसमें रख दी इस इक्वेशन में, तो आप ये कह सकते हो कि मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएगी ओमेगा बाई ओमेगा टू, राइट और रॉन्ग. ओमेगा बाई ओमेगा टू स्क्वायर की एक वैल्यू तो आएगी 1 प्लस म्यू बाय टू माइनस ऑफ अंडर रूट म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाय फोर, और दूसरी वैल्यू आएगी ओमेगा बाई ओमेगा टू का होल स्क्वायर की 1 प्लस म्यू बाय टू प्लस अंडर रूट ऑफ म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाय फोर, राइट और रॉन्ग. मैं ये कह रहा हूं एक बार आपने एब्जॉर्बर सिस्टम के अंदर लटका दिया तो इसका मतलब है M2 भी फिक्स हो गया है. अब आपने फाइनल सिलेक्शन कर लिया M2 का, तो M2 और M1 भी फाइनल हो गए, तो म्यू सेट हो गया, फाइनल हो गया. और एक बार म्यू की वैल्यू पता लग गई तो ऊपर वाली इक्वेशन में जब आप रखोगे, एज यू कैन सी देयर इज माइनस प्लस हियर, सो दैट इंडिकेट्स देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ओमेगा बाई ओमेगा टू. तो ये जो चीज मिल रही है ये आपको समझ में आ गई क्या, ये बता दो पहले. Yes, sir. इज दिस ठीक है? तो यू विल गेट टू वैल्यूज एंड दिस विल बी अ नंबर. ठीक है, अब ये एक नंबर के फॉर्म में मिल गया, ये म्यू की वैल्यू इसमें रखेंगे, सो दिस विल कम आउट एज सम वैल्यू, न्यूमेरिकल नंबर, सम नंबर. ठीक है, अब क्या करोगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से और सेकंड वाली इक्वेशन से you have now omega by omega 2 whole square is equal to some number. So what you will do is you will take the under root on both hand side, both LHS and RHS. So you say omega by omega 2 equal to under root of this number, and therefore omega is equal to omega 2 under root of this number. अब ओमेगा 2 तो आपका सेट है ही, आपने डिजाइन कर लिया अपना एब्जॉर्बर, तो इसका मतलब ओमेगा 2 आपको पता ही होगा, बिकॉज इट इज अंडर रूट ऑफ K2 by M2. भाई हमने पहले ही कह दिया कि हमने एब्जॉर्बर डिजाइन कर लिया है, तो हमने K2 भी पता कर लिया, M2 भी पता कर लिया. ठीक है, तो ओमेगा 2 आपको पता है, अंडर रूट ऑफ K2 by M2. तो ओमेगा 2 पता है और म्यू पता होने के कारण ये अंदर वाला नंबर भी पता है, ये दोनों पता है, तो आपको एक ओमेगा मिलेगा. So you will get omega. There are two values of omega that you will get. First omega will be obtained from this equation with the minus in between. The second omega value will be obtained by the second equation with the plus in between. अब ये जो दो ओमेगा की वैल्यूज आपको मिल रही है, ये कौन सी है? Once again I will take you back to the frequency response curves that were drawn for the vibration absorber system. एक्स एक्सिस पे ओमेगा अपॉन ओमेगा 2 लिया जाता है. देयर इज अ पीक indicating resonance, and then there is a valley with zero amplitude, then there is another peak like this. Now in this figure your omega by omega 2 starts with a value of 0, and then it starts increasing, it is going on increasing till you reach a certain location on the x axis where the amplitude is infinity. This is a danger point. So this first value of omega that you received by using that equation indicates this location. So basically this omega is the first natural frequency of the combined system. And again you start increasing the value of omega. Increasing the value of this omega means you are actually increasing the speed of your primary machine. And you reach another location of importance. Here your omega is equal to omega 2. This is the design point. इसी पॉइंट को डिजाइन करने के लिए आपने
एब्जॉर्बर को सिस्टम पे लटकाया था, ताकि इस फ्रीक्वेंसी पे आपकी सिस्टम की एम्पलीट्यूड 0 हो जाए। तो ये तो आपके लिए अच्छा है। दिस इज अ पॉइंट दैट यू वांट योर सिस्टम और योर मशीन टू ऑपरेट। आप अपनी मशीन को इसी पॉइंट पे रखना चाहते हैं। तो सबसे बढ़िया तो होगा कि मशीन को इस ओमेगा स्पीड पे सेट करके छोड़ दो। मशीन वाइब्रेट ही नहीं करेगी, बिल्कुल शांति से खड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है, बट ड्यू टू सम अपेरेंट रीजंस, कई बार अब मशीन हमेशा एक ही स्पीड पे चलाते रहे ये हर बार जरूरी तो नहीं है। कभी कभी स्पीड कम करने की भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी स्पीड बढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। सो due to some reasons, if you have to increase the omega speed and you keep on traveling towards the right, then again a new location is reached, which is once again a very deadly position. और यहाँ पर आपकी मशीन और एब्जॉर्बर की कंबाइंड सिस्टम, यानी कि जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, उस सिस्टम की सेकेंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ जाती है ओमेगा एन टू। और इसी कारण इस पॉइंट पे भी फिर से रेजोनेंस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, योर मशीन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग वायलेंटली अगेन। तो ये जो दो लोकेशंस हैं जहां पर ये पीक बन रहे हैं, दैट मींस these two locations are the values of those frequencies or the value of omega. When it comes to these values, your machine will again start vibrating violently. वाइब्रेशन एब्जॉर्बर लगा हुआ होने के बावजूद, ये वाइब्रेशन एब्जॉर्बर लगने के बाद की बात हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर के वाइब्रेशन एब्जॉर्बर लगा करके आपको क्या फायदा हुआ? आपको सिर्फ इतना फायदा हुआ कि भैया इस स्पीड पे गाड़ी चला लो, अपनी मशीन चला लो तो एम्पलीट्यूड 0 रहेगा। इस स्पीड से कम किया तो ये पेड़ बन जाएगा, इस स्पीड से ज्यादा किया तो फिर से ये पेड़ बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विच वी स्टार्टेड, इस इक्वेशन की जो दो रूट्स है, यानी कि ओमेगा की जो दो वैल्यूज है, ये आपको इन दो लोकेशंस का पता बताती है। ये लोकेशन कहां मिलेगी और ये लोकेशन कहां मिलेगी, दैट्स इट। ठीक है, सो वंस अगेन दिस इक्वेशन इज प्लस माइनस हियर, प्लस माइनस यहां रखा हुआ है। तो इनमें से एक साइन यूज करूंगा तो ओमेगा की एक वैल्यू मिलेगी, दूसरा साइन प्लस यूज करूंगा तो ओमेगा की दूसरी वैल्यू मिलेगी। ये जो ओमेगा की जो दो वैल्यूज मुझे मिल रही है, ये मेरी ओमेगा n1 और ओमेगा n2 ही मिल रही है मुझे। दीज आर द टू वैल्यूज दैट आई एम गेटिंग। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ मुझे। आ गया सर। आ गया ना? अब अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं। अब अपन जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि अपन क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन वेज 400 न्यूटन। ठीक है, एक मशीन की बात बता दी जिसका वेट है 400 न्यूटन। आगे चलें, इट रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 300 आरपीएम। तो अगर आरपीएम दे दिया जाए आपको, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं अपन। ठीक है, अगर आरपीएम आपको दे दिया जाए तो क्या आप मशीन की ओमेगा निकाल सकते हैं क्या? पहली बात कि किस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है मशीन अभी। यस सर। क्या फॉर्मूला लगाओगे? 2πn/60। 2πn/60। तो आप आरपीएम से तो अपन को कोई लेना देना है नहीं, तो हम ये कहेंगे कि अगर मेरा मशीन का आरपीएम कितना दिया हुआ है, 3000 आरपीएम अगर मेरा मशीन का है, तो इसका मतलब है मेरी ओमेगा यानी कि ऑपरेटिंग स्पीड इज 2πn/60 इन रेडियंस पर सेकेंड। क्योंकि देखो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है, और इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए अपन को ओमेगा चाहिए, एन से काम नहीं चलेगा।
तो इसलिए ओमेगा अपन ने निकाल लिया। आगे चले। आफ्टर इट वॉज इंस्टॉल्ड it vibrated with large amplitude at the operating speed। यानी कि आपकी ऑपरेटिंग स्पीड है 3000 आरपीएम, इसका ओमेगा आपने सेट करके निकाल लिया और आपकी मशीन बस एक ही स्पीड पे चलती है। ठीक है, इसमें स्पीड चेंज करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अब ये बोल रहा है कि भाई जो इंस्टॉल्ड स्पीड है उस स्पीड पे जब हम चला रहे हैं तो बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके मशीन की खुद की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो आपकी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि 300 आरपीएम से बिल्कुल मेल खा रही है। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि करंटली ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1। अब ये ओमेगा 1 क्या है? प्राइमरी सिस्टम आपका हमेशा K1 M1 है और इसी मशीन के ऊपर आपकी फोर्सिंग फंक्शन लगती है F0 साइन ओमेगा टी। अभी एब्जॉर्बर लगाया नहीं गया है तो आपके मशीन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है? इट इज ओमेगा 1 गिवन बाय अंडर रूट ऑफ K1 बाय M1। और मशीन पे लगाई जाने वाली फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? इट इज ओमेगा। तो आपकी जब मशीन के ऊपर लगाई जाने वाली फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी आपकी मशीन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आती है तो ही तो रेजोनेंस होता है। तो इसीलिए जब इन्होंने ये कहा कि आफ्टर इट वाज इंस्टॉल्ड इट वाइब्रेटेड विथ लार्ज एम्पलीट्यूड एट द ऑपरेटिंग स्पीड, मतलब बोला कि हमने मशीन चालू करी साहब तो ये बहुत भयानक तरीके से एम्पलीट्यूड दे रहा है, मशीन खुदा कराया खड़े खड़े। तो इसका मतलब है कि आपकी ऑपरेटिंग स्पीड आपकी रेजोनेंट स्पीड है। अब मशीन नहीं चला सकते आप, चलेगा ही नहीं। 3000 आरपीएम पे चलाना चाहते हो और वही बदकिस्मती से आपकी रेजोनेंट स्पीड हो गई। यानी कि अभी करंटली यू आर फेसिंग द सिचुएशन ऑफ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1। क्या करें साहब? बोला कि लेके आइए एब्जॉर्बर, इसके नीचे K2 M2 लटकाइए और ये K2 और M2 को कैसा डिजाइन करें? ये जो ओमेगा है इस ओमेगा के बराबर ओमेगा 2 रखो जो कि क्या है अंडर रूट ऑफ K2 बाय M2 है। बस काम खत्म, यही बोल रहा है। तो बोला ठीक है साहब लगा दिया। अब लगा दिया तो आपकी सिस्टम बन गई 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की और 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की सिस्टम बन गई तो बन गए दो पेड़। ठीक है, ये दो पेड़ पहले नहीं बने थे, जब आपने एब्जॉर्बर लगाया तब जाके दो पेड़ बने, लेकिन आपका काम तो हो गया। ये है आपकी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे 3000 आरपीएम था। अब इस पॉइंट पे एब्जॉर्बर लगाने से एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 0। x1 है आपके मशीन का एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये तो हो गया 0। लेकिन अब दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज पैदा हो गई ओमेगा N1 ओमेगा N2 जिसपे अगर गलती से मशीन चली गई तो फिर मशीन जंपिंग करना स्टार्ट कर देगा अप एंड डाउन, हैवी एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि व्हाट डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर शुड बी कपल्ड टू द सिस्टम, यानी मैं कैसा वाइब्रेशन एब्जॉर्बर सिस्टम में लगाऊं इफ द नियरेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम should be at least 25% away from the operating speed। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। ये बोलता है कि भाई मेरे को ऐसा वाइब्रेशन एब्जॉर्बर डिजाइन करके दो जिससे कि ये जो दो पेड़ बन रहे हैं, देखो मेरी ऑपरेटिंग स्पीड कहां पर है? सेंटर पे है, पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग स्पीड से कम ये जो दो पिलर बन रहे हैं ये 25% दोनों दिशाओं में दूर हो मेरे से। 25% लेफ्ट की तरफ दूर हट और 25% राइट की तरफ दूर हट। ये बोल रहा है ऐसा वाइब्रेशन एब्जॉर्बर चाहिए।
वरना अगर रैंडमली, जैसा मैंने आपको कल बताया था, देर आर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस ऑफ M2 एंड K2 which can serve the purpose of bringing the amplitude at 3000 rpm to zero. 3000 rpm पे एम्पलीट्यूड को जीरो बनाने वाले अनगिनत वाइब्रेशन एब्जॉर्बर के कॉम्बिनेशन है। तो कोई एक बंदा रैंडमली कोई K2 M2 सेलेक्ट करके लिया है, भाई उसको करना क्या है, उसको सिर्फ ओमेगा 2 को इक्वल टू ओमेगा ही तो रखना है, यानी कि ऑपरेटिंग स्पीड जो ओमेगा है आपकी, उसके बराबर K2/M2 का अंडर रूट रख के लाना है, एब्जॉर्बर बन गया। लेकिन अब उसको ये क्या पता कि ये पिलर कहां बनेंगे, तो वो जो बना के लाएगा हो सकता है उस हिसाब से आपका एब्जॉर्बर ऐसा हो। ये देखो, आपकी ऑपरेटिंग स्पीड के बिल्कुल पास पास आ गए पिलर, यानी कि ऑपरेटिंग स्पीड से अगर एक छोटा सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी हुआ तो फिर आपकी मशीन रेजोनेंस से फेल हो जाएगी। तो ये बोलता है कि ऐसा K2M2 डिजाइन करके लाओ जिससे कि ये चीज तय हो जाए कि मेरी ऑपरेटिंग स्पीड से 25% दोनों पिलर दूर हो। अब मेरे को ये बताओ आप, यहां पर है आपका ω/ω2 और ये ओमेगा आपकी ऑपरेटिंग स्पीड है। अब ये क्लेम कर रहा है बोथ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज यानी कि पिलर्स दे शुड बी at least 25% away from my operating speed। तो अब ये बताओ कि ये स्पीड कितनी होगी। देखो ये जीरो है, इस नंबर लाइन को मैं अब यहाँ अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक्स एक्सिस बना रहा हूँ, ये जीरो, यहाँ पे ω/ω2, यहाँ पे ω/n1/ω2, यहाँ पे ω/n2/ω2। अब ये बोल रहा है जीरो से स्टार्ट कर लो ओमेगा की गिनती, तो यहाँ पर तो आपकी क्या कंडीशन है, ओमेगा इक्वल टू ω2, ठीक है। तो इसका मतलब है इस वाले को मैं ω/ω2 लिखने की बजाय इसको 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अब ऐसा कुछ करो कि ये जो पिलर यहाँ बनता है और यहाँ बनता है, ये मेरी वैल्यू से 25% पीछे हो इधर तो, और ये मेरी वैल्यू से 25% आगे हो इधर तो अब ये बताओ कि ω/n1/ω2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। 0.75। वेरी गुड, इट शुड बी 0.75। और ω/n2/ω2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1.25। इट शुड बी 1.25। बस यही एक छोटा सा ट्रिक आपको सिखाना था, और अब आपको ये पिलर विलर ये सारी चीजें कुछ भी अपने एग्जाम में नहीं लिखना है, बस ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, अब देखो ये आसान हो गए। नाउ योर 90% ऑफ प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड एंड नाउ यू सी हाउ इजी इट इज टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर आप इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाते, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि ये 25% अवे का मतलब क्या होता है। और देखो ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये सारे एक ही टाइप के हैं। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, nearest resonant frequency of the combined system is at least 25% away from the operating speed। वही बात हो गई। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, a machine runs at इतना 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 और if the nearest frequency of the machine is at least 20% away from forced frequency। वापस से वही बात हो गई। तो घुमा फिरा करके आपके वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में बस यही क्वेश्चन आता है, एक परसेंटेज दे देंगे और बोलेंगे कि भाई इतना परसेंट मेरी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी से आजू बाजू दूर रखो। तो 20% है, तो 20% है तो कैसे कैसे आएगा ये बताओ सब। अब जैसे 6 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 20% है तो ये जो आपकी नंबर लाइन में ω/ω2 जीरो से स्टार्ट हुई, ये आपकी वो पॉइंट है जहां पर आपका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यहां पर तो आपकी ω/ω2 1 है। अब अगर मैं 20% दूर रखना चाहता हूं तो ω/n1/ω2 कितना हो जाएगा, 0.8। ये हो जाएगा 0.8।
और ओमेगा n2 बाई ओमेगा 2 कितना हो जाएगा? 1.2. ये हो जाएगा 1. बस इतना सा खेल है। अब एक बार ये चीजें आपको पता लग गई, अब देखो कितना आसान है। लेट अस गो बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन दैट वी वर डूइंग। 11th क्वेश्चन अपन कर रहे थे। ओमेगा अपन ने निकाल लिया था 3000 आरपीएम से। अब आपको करना क्या है, 25% अवे रखना है। फॉर्मूला लिखो, ओमेगा अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + म्यू माइनस अंडर रूट ऑफ म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4। ये तो एक बार आएगा। और दूसरा, ओमेगा बाय ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + म्यू प्लस अंडर रूट म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4 आएगा। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि इससे जो ओमेगा की वैल्यू निकल रही है वो ओमेगा n1 और ओमेगा n2 ही निकलेगी। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूं कि यहाँ पे ओमेगा बाई ओमेगा 2 लिखने की जगह मैं सीधे ओमेगा n1 और यहाँ पर ओमेगा n2 लिख दूं। सही है कि नहीं, ये बता दो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मेरे को बताओ इन दोनों में से छोटी वाली वैल्यू कौन सी है? दोनों एक्सप्रेशंस को देखो और ये बताओ विच इज द स्मॉलर वैल्यू। ऊपर वाली. First equation. ऊपर वाली, क्योंकि 1 + म्यू में से माइनस हो रहा है कुछ। तो अब सीधी सी बात है कि मेरे नंबर लाइन पे अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ओमेगा n1 और यहाँ पर ओमेगा n2 है, तो ओमेगा n1 वाला जो लोकेशन है वो 1 से कम आएगा। तो इसीलिए ओमेगा n1 निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, और ओमेगा n2 जो है वो 1 से ज्यादा आएगा, तो ओमेगा n2 निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो अब इसलिए आपको समझ में आ गया कि जब भी मैं प्लस और माइनस का इस्तेमाल करूंगा तो छोटी फ्रीक्वेंसी के लिए माइनस साइन यूज करूंगा और बड़ी फ्रीक्वेंसी के लिए प्लस साइन यूज करूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ये दे दिया है कि 25% अवे फ्रॉम द ऑपरेटिंग स्पीड है। तो अपन ने अभी अभी जो कॉन्सेप्ट समझा, तो उससे ओमेगा n1 अपॉन ओमेगा 2 25% कम करना है आपको लेफ्ट साइड में, तो ये 0.75 हो गया। और 25% राइट साइड में आगे को धक्का देना है, तो यानी कि ओमेगा n2 बाई ओमेगा 2 जो है वो हो गया 1.25। सही है ना? Yes, sir. तो सर अब इसमें म्यू बाय 2 आएगा, 1 + म्यू बाय 2. सॉरी सॉरी, 1 + म्यू बाई 2 है भाई, इक्वेशन मैं खुद ही भूल गया था। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। ओके, ओमेगा n1 बाई ओमेगा 2 को ऊपर वाली इक्वेशन में यानी कि छोटी वाली फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन में अब मैं अंदर जो ब्रैकेट में आ रहा है इसको गायब करके क्या लिख दूंगा, 0.75। और नीचे वाला ओमेगा n2 बाई ओमेगा जो कि बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके लिए मैं ब्रैकेट में 1.25 लिख दूंगा। समझ में आ गया ना क्यों किया अपन ने ये? बस यही करना है आपको, जितनी भी न्यूमेरिकल्स आएंगी आपके वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में इसी कहानी को रिपीट करना है। ऐसा का ऐसा करना है और कुछ नहीं करना। दो इक्वेशन आएगी प्लस और माइनस की, माइनस वाली में छोटा वाला परसेंटेज रख दो और प्लस वाले में बड़ा वाला परसेंटेज रख दो। ठीक है, और ये याद रखना कि 1 के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। पहले वाला 1 से 25% कम है तो इसीलिए 75 हुआ। दूसरा वाला 1 से 25% दूर है आगे को तो इसलिए 1.25 हुआ। ये याद रखना है बस। अब आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अपन को क्या करना है, क्वेश्चन वापस से पढ़ें। What dynamic vibration absorber should be coupled to the system? यानी कि कुल मिलाकर के ये बोल रहा है कि डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर को डिजाइन करो और वो ऐसा डिजाइन करो कि मेरी जो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज जो नई बनेंगी यानी दो नए पीक बनेंगे वो मेरी ऑपरेटिंग स्पीड से 25% दूर हो। तो ये कंडीशन आपने लगा दी। अब अपन को K2 और M2 डिजाइन करना है। यू हैव टू फाइंड इन दो इक्वेशंस की मदद से आपको ये पता करना है कि मेरे एब्जॉर्बर का K2 कितना है और मेरे एब्जॉर्बर का M2 कितना है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं।
थोड़ा सा मेरे को असिस्टेंस दीजिए, मैं पहली वाली इक्वेशन को टैकल कर रहा हूं अभी, ठीक है। 0.75 का होल स्क्वायर बताओ कितना है। somebody should assist me। 0.75 का होल स्क्वायर 0.5625 0.5625 25 इक्वल टू 1 प्लस म्यू बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4, यही है ना। ठीक है, अब देखो इसमें से सबसे पहले मेरे को म्यू की वैल्यू को आइसोलेट करके निकालना है। तो इसका भी एक तरीका है। इस इक्वेशन को अगर आप अपनी मर्जी से टैकल करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसकी भी एक टेक्निक सीखो, इसमें से म्यू को क्विकली एक्सट्रैक्ट करने का एक स्ट्रैटेजी है, एंड दैट इज टू आइसोलेट द रेडिकल पार्ट ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड देन प्रोसीड फॉर सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूंगा, इस रेडिकल पार्ट को लेफ्ट साइड पे ले आता हूं और इस कांस्टेंट वाली क्वांटिटी को राइट साइड पे ले आता हूं। So by rearranging, I get mu plus mu square by 4 equal to 1 plus mu by 2 minus 0.5625। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है। म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट इक्वल टू कितना प्लस म्यू बाय 2 है, जरा बताओ ये। 1 माइनस 0.5625 करो। 0.4375 0.4375, 375 यही है क्या। यस सर। अब करना है आपको दोनों साइड स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपना बन जाएगा म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4, अंडर रूट हट जाएगा इसका, इक्वल टू, प्लीज टेल मी द स्क्वायर ऑफ 0.4375। 0.1914 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4, मैं इसका स्क्वायर करके एक्सपैंड कर रहा हूं, ठीक है, प्लस 2 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा प्लस 0.4375। सही है क्या, दे रहे हो। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नहीं ठीक है। ठीक है सर। अब सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। देखो अब आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे, दोनों साइड में म्यू स्क्वायर बाय 4 म्यू स्क्वायर बाय 4 कैंसल। ठीक है, अब म्यू को एक साइड में पकड़ो, ब्रिंग दिस टर्म ऑफ म्यू टू दिस साइड, तो यू गेट म्यू माइनस 0.4375 म्यू इक्वल टू 0.1914। ठीक है, म्यू में से 0.4375 म्यू माइनस करेंगे तो 0.5625 आ जाएगा। दिस इज 0.5625 म्यू इक्वल टू 0.1914। व्हाट इज म्यू। 0.3403 0.34 ले लें इतना। यस। तो म्यू की वैल्यू आ गई अपने पास 0.34। लेकिन अब अगला सवाल आता है कि ये तो अपन ने सिर्फ एक इक्वेशन यूज करी थी, ये ऊपर वाली। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज मेक यूज ऑफ द सेकंड इक्वेशन and perform steps exactly like I told you to do for the previous equation, यानी रेडिकल पार्ट को एक साइड में आइसोलेट करके बाकी चीजों को दूसरे साइड ले जाओ और इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करके इसमें से भी एक बार म्यू की वैल्यू निकाल के मुझे बताओ। तो डू दिस एट योर एंड एंड क्विकली टेल मी द वैल्यू ऑफ म्यू फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन।
अब की बार प्लस है बीच में, ये ध्यान रखें। The proper isolation should look like this. तो 0.2025. हम्म, ऐसे ही चल रहा था आपका, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, ऐसे ही किया कि नहीं किया? यस सर. ठीक है, तो म्यू की फाइनल वैल्यू आप बता रहे हो मेरे को कितना आ रहा है? 0.2025. 0.2025। तो पहली इक्वेशन ने आपको म्यू दिया 0.34 और दूसरी इक्वेशन ने म्यू दिया आपको 0.2025। नाउ इन दिस कंडीशन विच म्यू शुड यू टेक? अब इस चीज का जवाब आपको मिलता है इस कर्व से। ये आपको एक कर्व सिखाई थी कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ म्यू, जैसे अगर मैं म्यू छोटी वैल्यू लेता हूं तो मेरे पीक्स जो हैं, ये देखो, इधर और इधर बने, पास पास बन रहे हैं। अगर मैं म्यू की वैल्यू लार्जर सेलेक्ट करता हूं तो मेरे जो पीक्स बनेंगे ओमेगा बाई ओमेगा 2 के, वो यहां और यहां। तो ये देखो, ज्यादा म्यू लोगे तो पीक्स के बीच में ज्यादा गैप आएगा, छोटा म्यू लोगे तो पीक्स के बीच में छोटा गैप आएगा। तो इसीलिए एज अ प्रोसीजर ऑफ डिजाइन, it is always advisable to select the larger value of mu when multiple values of mu are presented. So which according to you is the correct value of mu? First 0.34. It is 0.34। तो आप दो वैल्यूज ऑफ म्यू निकालेंगे और छोटी वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे। यू विल सेलेक्ट द लार्जर वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, अब आपके पास में म्यू की वैल्यू आ गई 0.34। अब देखो, म्यू क्या चीज होती है? इट इज m2/m1, राइट? और आपका डिजाइन प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ योर डिजाइन और द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर डिजाइन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m2 एंड द वैल्यू ऑफ k2, राइट? तो अब आपके पास में म्यू मिल गया है, तो आप m2 कैसे निकालेंगे? प्रॉब्लम में देखो, क्या m1 गिवन है क्या? A reciprocating engine weighs 400 न्यूटन, तो m1 कैसे निकालेंगे? Divide by 9.8. You have to divide it by 9.81 to get the value of m1। ठीक है, तो m1 जो है वेट दे रखा है न्यूटन में, तो 400 न्यूटन डिवाइडेड बाय 9.81 विल बी इन किलोग्राम्स। ठीक है, तो m1 अब पता लग गया, म्यू आपको पता लग गया, तो m2 पता लग जाएगा। पहला पार्ट तो खत्म कर दिया कि भाई दिए हुए कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए मेरे एब्जॉर्बर का मास कितना होना चाहिए। अब रह गया कि मेरे एब्जॉर्बर का स्प्रिंग कितना होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज टू फाइंड K2। और ये आपको कहां से मिलेगा? यू नो दैट ओमेगा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K2/m2, जिसमें अपन को m2 पता है। तो अगर कहीं से ओमेगा 2 पता लग जाए तो K2 भी पता लग जाएगा। अब कोई मेरे को इस क्वेश्चन में देख करके बता सकता है क्या कि इसमें ओमेगा 2 पता करने की कौन सी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है? देयर इज अ हिडन इंफॉर्मेशन इन दिस which contains the hint to finding omega 2। Omega 300 RPM, 3000 RPM. जो 3000 आरपीएम आपने कहा कि मेरी ऑपरेटिंग स्पीड है, वो ही आपकी ओमेगा 2 है। क्यों?
क्योंकि भाई यही अपन बार बार कहते आ रहे हैं कि जब वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, इस फिगर में कहाँ होता हुआ दिख रहा है वाइब्रेशन एब्जॉर्बर? यहाँ तो पीक बन रहे हैं, यहाँ तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो रहे हैं दोनों जगहों पे। लेकिन ये जो पोजीशन है सेंटर वाली, यहाँ पर आपकी वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन हो रही है, और इसी कारण ही तो आपका एम्पलीट्यूड जीरो आया है। तो एट दिस लोकेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टू। तो जब आपने एब्जॉर्बर को डिजाइन कर लिया और उसको प्राइमरी सिस्टम पे अटैच कर दिया, तो ओमेगा टू के बराबर हो गया ना, उसी पे ही तो डिजाइन करना है। सो बेसिकली दिस ओमेगा इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ओनली। तो आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा इज इक्वल टू 3000 आरपीएम दे रखा है, सो दिस इज 2 पाई n by 60 where n is 3000। बस इसमें ये n की वैल्यू डालो, ओमेगा निकालो, वही आपका ओमेगा टू है। और m2 को इसके साथ में पहले स्क्वायर कर लो, फिर m2 को मल्टीप्लाई कर लो, एंड देन यू गेट द वैल्यू ऑफ k2, एंड योर फाइनल आंसर हैज टू बी प्रेजेंटेड लाइक दिस। ये देखो 11th वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने ट्यूटोरियल शीट में सॉल्व कर रखा है। ये देखो m2 इतना किलो निकला और K2 इतना न्यूटन पर मीटर निकला। दिस इज हाउ द आंसर हैज टू बी प्रेजेंटेड। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया है? कोई डाउट है क्या इस प्रोसीजर में? ये पूछ लो आप, कोई भी डाउट है तो। अगर डाउट नहीं है तो मैं आपको अब सिर्फ इतना कहूंगा, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर ओन, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर ओन। बिल्कुल डिट्टो इसी प्रोसीजर पे चलने वाले क्वेश्चंस हैं ये। एक क्वेश्चन नंबर 9 है जो आरटीयू 2013 में आया था, और ये एक हिला देने वाला क्वेश्चन था। यानी कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ छुपे बैठे हैं, या ये कह लो कि ये आप नॉर्मल स्टूडेंट के लेवल से 2 लेवल ऊपर का क्वेश्चन है। This requires a very very in-depth and good understanding of how to design a proper vibration absorber। तो इसके बारे में, चूंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, तो इसका जो सॉल्यूशन है मैंने बहुत डिटेल में लिख लिख के बनाया है। और ऐसा लिख के बनाया है जो कि आपको आंसर में इतना सब नहीं लिखना है। आंसर में तो आपको शॉर्ट एंड कंसाइज करना है, लेकिन आंसर नंबर 9 का मैंने, देखो कोई फिगर भी नहीं दिया हुआ था आरटीयू के पेपर में, लेकिन फिगर विगर सब बना करके मैंने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में, इसमें सारा थ्योरी भी लिखा है कि भाई कौन सी चीज अपन क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारी चीज थ्योरी के साथ में लिखी। तो इट हैज टेकन मी अप्रोक्सीमेटली 2.5 pages ऑफ राइटिंग टू एक्सप्लेन एंड टू सॉल्व द कंप्लीट प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका आइडिया तो बता दूंगा, लेकिन ये आप पे रहेगा कि आप इस पूरे प्रॉब्लम को अपने हाथ से एक बार इसको पढ़ें और उसके बाद समझें और अपने हाथ से सॉल्व करें। ठीक है, आई विल जस्ट गिव यू द डायरेक्शंस ऑन व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट। लेकिन एक चीज और रह जाती है, कभी कभी देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में देयर इज अ सेकेंडरी पार्ट आल्सो। अंडर दीज कंडीशंस व्हाट एम्पलीट्यूड ऑफ द एब्जॉर्बर विल बी ऑब्टेन्ड। यानी कि ये पूछ रहा है, ठीक है, आप अभी ये वही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने सॉल्व किया है। ठीक है, एंड ही सेइंग कि ठीक है आपने एब्जॉर्बर लगा दिया ना, और उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज 25% दूर भी हो गई, बिल्कुल सही है। अब ये बताओ कि प्राइमरी सिस्टम तो बिल्कुल चुप हो गया, लेकिन उसका जहर जिसने पिया, यानी कि एब्जॉर्बर ने, उस एब्जॉर्बर मास का क्या एम्पलीट्यूड चल रहा है? वो हिल रहा है या चुपचाप खड़ा है, या हिल रहा है तो कितना चल रहा है, वो कितना आगे पीछे ऊपर नीचे उछल कूद कर रहा है? सेकेंडरी मास। ठीक है भाई, प्राइमरी तो चुप हो गया, लेकिन सेकेंडरी उसके एम्पलीट्यूड को और फ्रीक्वेंसी को खा रहा है, उसका जहर पी रहा है। तो इसका मतलब उसके अंदर तो कुछ वाइब्रेशन दिखना चाहिए ना, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है ये पूछ रहा है।
तो ये मैंने कल आपको लास्ट क्लास में एक छोटा सा हिंट और दिया था, उसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब आपकी वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम चालू हो जाए, यानी कि इस पॉइंट पे, ये देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, जब इस पॉइंट पे आपका प्राइमरी सिस्टम का एम्पलीट्यूड तो जीरो हो गया, तो सेकेंडरी सिस्टम का एम्पलीट्यूड यानी कि x2 कितना होगा? आयुष इज सेइंग दैट देयर इज अ ग्लिच इन माय वॉइस। मेरी आवाज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन कुछ लग रहा है क्या आपको? नो सर। ये लगता है आयुष के एंड पे देयर इज सम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। आयुष आपके एंड पे कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी मेरी आवाज में कोई वो आ नहीं रहा है प्रॉब्लम। अदर स्टूडेंट्स आर वेरीफाइंग इट, तो प्लीज बियर विथ मी, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिकॉर्डिंग जब आपके पास आ जाएगी तो आपको इसमें आवाज में ग्लिच नहीं आएगा। एनीवे, सो द क्वेश्चन इज कि भाई अब अपने एब्जॉर्बर का क्या एम्पलीट्यूड होगा, तो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जब वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम चालू हो जाए, इन द कंडीशन ऑफ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, दैट इज व्हेन योर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द standalone frequency of your vibration absorber, then the amplitude of the absorber mass itself will be given by f naught upon k2। तो k2 तो आपने डिजाइन कर लिया, ठीक है ना? आपको m2 और k2 निकालने थे इस प्रॉब्लम में, k2 आपके पास में आ गया है। लेकिन अब आप इस प्रॉब्लम में देखो, कहीं पर भी f नॉट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन के अंदर? कि भाई जो अप्लाइड आपकी मशीन बोला कि भाई 3000 आरपीएम पे चल रही है, मशीन का वेट भी दे रखा है, लेकिन इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। और सीधी सी बात है कि एफ नॉट निकालना पॉसिबल ही नहीं है गिवन इंफॉर्मेशन से। तो आरटीयू के प्रॉब्लम्स में भी इस तरह की आधी अधूरी क्वेश्चंस आती है। तो आपको क्या करने का है, हाउ विल यू टैकल दिस पार्ट? आपको निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ एब्जॉर्बर मास। तो आप तो सिर्फ इतना कह दो, in the condition of absorption, the amplitude of my absorber mass x2 is given by f naught by k2, where k2 तो मैंने निकाल लिया, इतना 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 वैल्यू आया, ठीक है। और अगर f नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तब तो कैलकुलेट कर लो, और अगर नहीं दे रखी तो आप बस इतना सा लिख करके आंसर लिख दो। बस बोलना कि बस यही है आंसर, एफ नॉट दिया ही नहीं तुमने, नहीं दिया तो आंसर इतना ही हो गया, बस K2 निकाल लिया था मैंने, तो एफ नॉट अगर तुम दे देते तो मैं निकाल लेता, नहीं दिया तो बस यही आंसर है। सो यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू कंप्लीट द क्वेश्चन वेदर द क्वेश्चन पेपर सेटर हैज ऑन हिज पार्ट डिलीवर्ड हिज ड्यूटी ऑफ गिविंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन और नॉट। तो वो उसने इंफॉर्मेशन दी हो चाहे नहीं दी हो, आप तो अपना काम खत्म कर दो, और जो अननोन इंफॉर्मेशन है उसको अननोन ही रहने दो, एफ नॉट बाई K2 लिख दो। तो इतना याद रखना है, anytime the amplitude of absorber is asked, you put it as a box formula now. The amplitude of absorber will be f naught upon K2 when the absorber is working at the operating speed। ठीक है, ये याद रख लेना। अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखते हैं ये क्या क्या बोल रहा है। In a refrigeration plant, a section of pipe carrying refrigerant vibrated violently at a compressor speed of 240 rpm। तो अब अपन को समझ में आ गया, पहली बात तो 240 rpm पे मशीन चल रही है। और एक तरह से तो मैं ये बता दूं, आपको कभी भी वाइब्रेशन एब्जॉर्बर की बात कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको इस बात से परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि इसका एक्चुअल सिस्टम कैसा दिखता है। ये तो मैंने बना दिया, बट यू डोंट हैव टू मेक अ सिस्टम लाइक दिस, फॉरगेट अबाउट इट। फॉर ऑल क्वेश्चंस ऑफ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स you can simply go ahead and represent your systems like this।
ये मेरा प्राइमरी है और ये मेरा सेकेंडरी एब्जॉर्बर सिस्टम। तो K2M2 मेरा एब्जॉर्बर है, K1M1 मेरा प्राइमरी है। अब वो पाइप की बात करें, कंप्रेसर की बात करें, रेफ्रिजरेशन प्लांट की बात करें, गाड़ी के इंजन की बात करें, चाहे एयर कंडीशन की बात करें, कुछ भी करें, दुनिया का कोई भी मशीन इंजन कुछ भी लेके आने दो, यू डोंट हैव टू बॉदर योरसेल्फ विद कॉम्प्लिकेटेड इमेजिनेशंस। प्राइमरी सिस्टम K1M1, सॉरी इसमें M2 लिखा है, दिस इज M1, और सेकेंडरी सिस्टम K2M2, खत्म बात। तो यू डोंट इवन हैव टू इमेजिन दिस स्टफ, ये तो मैंने कर दिया तो कर दिया, बट डोंट वरी अबाउट दिस। आप तो अपने सिस्टम को ऐसा बनाओ बस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं कि भाई मेरा रेफ्रिजरेटर पाइप है और उस पे कंप्रेसर की स्पीड जब 240 आरपीएम हुई, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 240 आरपीएम पे वायलेंट वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब अपन को समझ में आ गया कि जब मेरा एब्जॉर्बर नहीं लगा था, मेरा प्राइमरी सिस्टम का ऑपरेटिंग स्पीड ओमेगा किससे निकलेगा, 2πn/60 से निकलेगा, जिसमें n क्या है, 240 आरपीएम है। तो मेरे को ओमेगा पता है जिसपे मेरी प्राइमरी मशीन रेजोनेंट कंडीशन पे आ गई है, ठीक है। फिर ये क्या बोलता है, टू एलिमिनेट दिस डिफिकल्टी it was proposed to clamp a cantilever spring mass system to the pipe to act as an absorber। अब आप बोलोगे यार अब ये कैंटिलीवर कहां से आ गया, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, चिंता ही नहीं करनी आपको, आपको वाइब्रेशन एब्जॉर्बर की बात कर दी ना इसने, टू एक्ट एज एन एब्जॉर्बर। तो कैंटिलीवर वेंटिलीवर को मारो गोली, आप तो सिर्फ ये बता दो कि भाई मैं तो इस पे ये सेकेंडरी सिस्टम ला रहा हूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, K2M2 ला रहा हूं बस। So it is, the question is asking कि how much should be the K2 and M2। ये एक प्रॉब्लम आई तो आपने एक एब्जॉर्बर लगाने की बात सोची, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, इन अ ट्रायल टेस्ट a 900 gram absorber tuned to 240 rpm, मतलब ये बोल रहा है कि 900 ग्राम का एब्जॉर्बर तो लगा लिया हमने, ये आपको निकालने को नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है हमने लगा लिया 900 ग्राम का एब्जॉर्बर। तो 900 ग्राम का एब्जॉर्बर लगाया है तो K2 कितना है ये तो बताया नहीं, K2 निकालना भी नहीं है, इन्होंने बोला ट्रायल टेस्ट था। और ट्यून्ड टू 240 आरपीएम का क्या मतलब है, मतलब आप डिजाइन कैसे करते हो, ये ओमेगा आपको परेशान कर रही है 240 आरपीएम वाली, तो जो आप एब्जॉर्बर सिस्टम बनाओगे वो कैसा बनाओगे, वो ऐसा बनाओगे कि ये जो ओमेगा है ये आपके एब्जॉर्बर की ओमेगा 2 के बराबर हो। यही तो है डिजाइन ऑफ एब्जॉर्बर। तो इसमें आपको बोल दिया कि भाई हमने तो 900 ग्राम लगाया है, 900 ग्राम का एब्जॉर्बर लगा दे, तो उस हिसाब से आपको ओमेगा पता है ना, तो ओमेगा 2 भी पता है, तो इस 900 ग्राम के लिए कितना K2 लगाना है ये भी पता है आपको, निकाल लो। लेकिन K2 निकालने को ये बोल ही नहीं रहा, बोल रहा है कि ट्रायल टेस्ट था हमने लगा दिया, 900 ग्राम का मास लगाया, तो अब देख लो K2 निकल जाएगा, यू कैन कैलकुलेट। और वो मैंने कैलकुलेट करके भी रखा हुआ है, हालांकि इन्होंने पूछा नहीं है, बट आई हैव कैलकुलेटेड। ये रहा आपका ट्रायल, लगाते टाइम फ्रीक्वेंसी तो यही आएगी, आपको 240 आरपीएम पे चलाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो K2 होगा वो इतना निकल के आ रहा है, ये मैंने निकाल के रखा, लेकिन आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपने एक एब्जॉर्बर तो लगा दिया, लेकिन अब क्या इनको प्रॉब्लम हो रही है, ये बोल रहा है कि इन अ ट्रायल टेस्ट व्हेन अ 900 ग्राम एब्जॉर्बर ट्यून्ड टू 240 आरपीएम वाज यूज्ड, it resulted in two natural frequencies of 190 and 270 CPM। अब ये CPM क्या है, व्हाट इज CPM, साइकिल पर मिनट। साइकिल्स पर मिनट, और ये साइकिल्स पर मिनट और आरपीएम में कोई फर्क नहीं है, दे आर बोथ द सेम। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कभी आरपीएम की जगह आपको CPM दे देते हैं, तो घबराना मत, ये वही चीज है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई अब हमें
कोई दिक्कत नहीं है, आपने ट्रायल मास और वो लगा दिया तो 900 ग्राम पे मेरा जो सिस्टम है उसने वाइब्रेट करना तो बंद कर दिया। लेकिन मुझे परेशानी इससे हो रही है कि ये 190 और 270 पे पीक बन रहा है। अब देखो क्या है इसको प्रॉब्लम, 240 पे तो कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम थी इस जगह पे, 240 यहां पर आ रहा था मेरा, तो आपने एब्जॉर्बर लगा दिया तो 240 पे तो एम्पलीट्यूड हो गया 0। लेकिन अब जो दो पीक्स तो बनने ही बनने हैं, ये तो बनेंगे ही बनेंगे, है कि नहीं। तो अब मेरे को इससे प्रॉब्लम हो रही है, ये मेरे बहुत नजदीक आ गया। एक तो 190 पे बन रहा है और एक 270 पे बन रहा है, ठीक है। तो इससे क्या तकलीफ है आप, तो बोला कि नहीं तकलीफ तो कुछ नहीं है, बस इतना एक काम करो, ये ट्रायल वाला मास और ये हटाओ और एक ऐसा फाइनल एब्जॉर्बर लगाओ जिससे कि if the absorber system is to be designed so that the natural frequencies lie outside the region of 160 and 320 cpm, यानी कि ये अब आपसे चाहता है कि भाई मेरी पाइप ने वाइब्रेट तो करना बंद कर लिया लेकिन अब मेरे पास में ये वर्किंग रेंज बहुत कम रह गई, तो आप एक ऐसा एब्जॉर्बर लेके आओ जो कि इन दोनों को दूर कर दे। So he wants an absorber which will give you a curve like this। देखा आपने, तो ये तो 240 रहेगा जहां पर आपकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन अब ये दोनों दूर चले गए। ये कहां पे चाहता है, ये पहले बन रहा था 190 पे, यहां बन रहा था, और एक बन रहा था 270 पे। ये बोल रहा है इसको तो ले जाओ 160 और इसको ले जाओ 320। ये है इसकी पूरी कहानी, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दिया है, और अगर ये मैं ड्रॉ करके और ऐसे नहीं समझाता तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आती। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको? इन्होंने एक ट्रायल सिस्टम लगाया, तो एब्जॉर्बर तो डिजाइन कर लिया था एक बार इन्होंने, लेकिन ये फ्रीक्वेंसीज इतनी पास पास आ रही थी, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि एब्जॉर्बर को दोबारा डिजाइन किया जाए जिससे कि फ्रीक्वेंसीज इस रेंज से बाहर जाए। तो आपकी बार परसेंटेज नहीं दिया, सीधे सीधे वैल्यूज के तौर पे दे दिया है। अब आप मेरे द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन को पूरा पढ़ें। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोल दिया है। सो दो स्टूडेंट्स हु वांट टू ओमिट दिस क्वेश्चन, जो ये रिस्क ले रहे हैं कि भाई ठीक है एक बार तो आरटीयू में पूछ लिया, बार बार शायद नहीं पूछे। और ये मैं बता दूं कि आरटीयू में क्वेश्चन कई बार कॉपी पेस्ट होके आ जाता है। सो इट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है यहाँ, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लो, क्योंकि अगर मैं इस प्रॉब्लम को पूरा कराता तो इसमें आधा घंटा और लग जाता। So I leave it up to you because I have already written a detailed explanation for this कि कौन कौन सा स्टेप और कौन कौन सा कैलकुलेशन इसके लिए कैसे कैसे किया और क्यों किया, सब लिखा है इसमें। और अगर ये पढ़ के आपको समझ में नहीं आता, then you individually contact me at your own leisure time, अपनी अपनी इच्छा से, कि भाई सर एक बार ये और बता दो, ये मैंने देखा पढ़ के लेकिन मेरे को क्लियर नहीं हुआ और क्या डाउट है ये क्लियर कर दो। तो मैं फोन पर ही क्लियर कर दूंगा या फिर अपने गूगल मीट कर लेंगे इंडिविजुअली आपके लिए। सो इट्स अप टू यू। अगर आप में से कोई मेरे को कांटेक्ट इस क्वेश्चन को लेकर नहीं करता तो मैं ये मान लूंगा कि जो मैंने लिख के दिया उससे आपको समझ में आ गया। ओके, प्रॉब्लम क्लियर हो गई क्या? ये क्वेश्चन नंबर 9 की क्या है, क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई से क्लियर। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है।